Diese Konferenz wird nun aufgezeichnet. Thousands of tweets are stored in this CSV file. I downloaded from the internet. Okay, one is test tweet, this one, and I download another CSV file that is train tweets. Means using some data we train our model, maybe using some data we test our model. Okay, these are the tweets actually. And if we observe the tweets, let's see students, all the words are not important for us. कि पहले प्रीवियस क्लास में मैं वो सिंपल प्रोग्राम एग्जांपल क्यों दिखाता, एक्चुअली मैं आइडिया दिए थे कि सेंटिमेंट मतलब क्या है, कि एक्चुअली कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉजिटिव वर्ड, नेगेटिव वर्ड्स एंड न्यूट्रल वर्ड्स. तो ये ट्वीट में पॉजिटिव वर्ड्स, नेगेटिव वर्ड्स, सब जितना सारा वर्ड देके सब यूजर मैसेज करते हैं, सबको ले लेंगे तो बहुत सारा वर्ड आ जाएगा. जैसे एट द रेट ऑफ यूजर में भी कभी कभी ऐसा लिखते हैं ना, एट द रेट ऑफ महेंद्र, जो यूजर है उसका नाम लिखते, तो वो नेम तो इम्पोर्टेंट नहीं है. उसके बाद देखो कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी, अननेसेसरी कैरेक्टर्स भी है, तो ये सबको रिमूव कर देना चाहिए. तो मतलब क्या है कि सेंटिमेंट एनालिसिस करने का पहले जितना सारा ट्वीट्स है उसको, वो सबको ऑर्गेनाइज करके प्रोसेसिंग करना है. प्रोसेसिंग क्यों करेंगे कि जितना सारा अननेसेसरी वर्ड्स है वो रखेंगे नहीं. तो इसलिए कैसे कर सकते हैं? ऑब्वियसली एट फर्स्ट we have to read the data from the CSV file. I think all of you know that. Using the Panda in line number 10, these are the module we use. Actually, in the previous class, I talked about this. RE means regular expression. मतलब using regular. Why we use regular expression? Actually, regular expression module provides us different built-in functions. Using these built-in functions, we check the different formatted text or words available in the tweets. Later, we use some built-in functions. Pandas, I think all of you know that, NumPy, NP, Matplotlib for visualizing the data, and another one is Seaborn. Seaborn भी एक मॉड्यूल है जो यूज करके हम लोग डेटा विजुअलाइज कर सकते हैं. And another very important, that is NLTK. Here we use natural language toolkit. And warning, sometimes we use previous version built-in functions. At that time it will show you a message, warning message. If you want to suppress the warning message, at that time we use this warning module. And here we write warnings.filter warnings, ignore all the modules. Category, what type, ignore all the warning messages. What is the category of the messages? Deprecation warning. Deprecation मतलब previous version or lower version में जो use होता. Next, we read the data from the CSV file using read_CSV function. We read the data from train.csv file, store it in a variable train, and then pd.read_csv, read the data from test.csv file, then print test. Store the value in the test. So after reading the file, if we observe train data and test data, let's see. तो देखो एक्चुअली ये सब ट्वीट्स है. These are the tweets, isn't it? तो ऐसा ट्रेनिंग डेटा में भी ट्वीट्स, डिफरेंट ट्वीट्स है, टेस्ट डेटा में भी डिफरेंट ट्वीट्स है. तो ये सबको क्या करें, अभी प्रोसेस करें कि जितना सारा अननेसेसरी है वो सब डिलीट, रिमूव कर दें. उसके बाद देखो यहाँ क्या कहते, प्रिंट ट्रेन डॉट हेड. हेड एक्चुअली हेड फंक्शन का फंक्शनलिटी क्या है, फर्स्ट 5 रोज को वो प्रिंट करता है. जैसा टेल बोल के और एक फंक्शन है जो फर्स्ट 5 रोज को प्रिंट करेगा. देखो it will print first 5 rows. These are the tweets. 0 to 4. Okay. Next, let's see.
I share this small documentation also. So when we write train.head, at that time it will print the first 5 rows like this. The data has 3 columns. जो data frame है, देखो यहाँ data frame में कितना columns है? 3 columns. एक है कि ID, एक label, and another one tweet. Okay. 3 columns: ID, label, tweet. Label is a binary target variable, and tweet contains the tweets that we will clean and process. तो actually हम लोग जो label है, label actually 0 1 देके labeling किए हैं, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि binary target variable. Okay, मतलब output. और जो analysis करेंगे वो क्या है? Tweet. तो tweet को क्या करना चाहिए? Clean और process करना चाहिए. Initial data cleaning requirements that we think can think of after looking at top 5 records. तो first 5 जो records है वो देख के हम लोगों को क्या पता चला? The Twitter handles are already marked as at the user due to privacy concern. तो ऐसा देखे भी तो हम लोग ट्वीट करते हैं. So these Twitter handles are hardly giving any information about the nature of the tweet. We can also think of getting rid of the punctuation, numbers, even special characters, since they would not help in differentiating different kind of tweets. जो sentiment analysis कर रहे हैं, there's a number, कुछ special character, hash sign, @sign, @user, जो सिक्योरिटी के लिए यूज होता है, तो वो सब तो ट्वीट के लिए इंपॉर्टेंट, ट्वीट सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं. And most of the smaller words do not add much value. For example, his, all, is, are, ऐसा small word जो है, तो small word से जैसा verb, preposition, with, when, ये सब word तो important नहीं है. So we will try to remove them as well from our data. तो हम लोग क्या करेंगे? We want to remove these unnecessary words. Once we have executed the above 3 steps, we can split every tweet into individual words or tokens, which is an essential step in any NLP task. Let's see. जैसा देखो ये when, if, further is important maybe, is, for, ये सब word तो important नहीं है. तो क्या किया देखो? At first, in the line number 16, what we write? Train.append. I think all of you know that append is a function. Using that function, we append new data at the end of the train data. Train मतलब this data frame. तो append मतलब end में append होगा. देखो train.append क्या append कर रहा हूँ? टेस्ट डेटा. क्योंकि देखो यहाँ हम लोग जो डेटा सेट है, एक ट्रेन है, एक टेस्ट है. Just wait. There are huge number of tweets, that's why it will take some time. तो यहाँ भी देखो कुछ ट्वीट्स है. तो क्या कर रहा हूँ? ये जो टेस्ट में जितना सारा ट्वीट्स है वो ट्रेन में append कर रहा हूँ, क्योंकि वो सब अननेसेसरी वर्ड को रिमूव कर देंगे. तो आप लोग बोलेंगे सर फिर append करेंगे तो बाद में ट्रेनिंग डेटा, टेस्ट डेटा जरूरी है, तो क्या करेंगे? बाद में स्प्लिट कर देंगे, नो प्रॉब्लम. लेकिन append क्यों कर रहा हूँ? जो भी प्रोसेस करेंगे दोनों ही डेटा में प्रोसेस करेंगे. ओके, तो इसलिए देखो पहले append किया. append करने के बाद क्या किए? लेट्स सी, एक फंक्शन डिफाइन किया. दिस इज नॉट a built-in function, this is a user defined function. In line number 18, देखो definition remove underscore pattern is the name of the function. There are 2 parameters. एक है कि input text, comma, another one pattern. तो देखो हम लोग एक्चुअली क्या करना चाहते हैं? कुछ पैटर्न है, जैसे @user जितना सारा है वो सबको रिमूव करना है. तो इसलिए देखो एक पैरामीटर दे दिया, कौन सा पैटर्न को रिमूव करना है और कौन सा टेक्स्ट रिमूव करना है. तो मैं जो वेरिएबल नेम दिए हैं, देखो नेम से आप लोगों को पता चल जाएगा. इनपुट टेक्स्ट, टोटल टेक्स्ट इज दिस,
और पैटर्न मतलब एक पैटर्न सेंड करेंगे, कौन सा पैटर्न को रिमूव करना। तो इसलिए देखो क्या किए हैं, आरई मतलब आरई मॉड्यूल, दिस इज इंपोर्ट आरई रेगुलर एक्सप्रेशन। इन आरई मॉड्यूल देयर इज अ बिल्ट इन फंक्शन फाइंड ऑल, एंड व्हाट इज दिस, देखो वी फाइंड ऑल द पैटर्न्स अवेलेबल इन द इनपुट टेक्स्ट। तो इनपुट टेक्स्ट जो दे रहा हूं उसमें वो पैटर्न, जो पैटर्न हम लोग पास करेंगे वो अवेलेबल है कि नहीं सर्च कर रहा हूँ। तो क्या करेगा वो, जितना सारा पोजीशन में अवेलेबल है वो इंडेक्स रिटर्न करते हैं, लिस्ट ऑफ इंडेक्सेस। उसके बाद क्या कर रहा हूँ देखो, फॉर आई इन आर, मतलब आर में क्या होगा, वो जो पर्टिकुलर पैटर्न कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट में कौन कौन इंडेक्स में अवेलेबल है वो रिटर्न करेगा। तो इसलिए क्या कर रहा हूँ, आर में क्या है, लिस्ट ऑफ इंडेक्सेस। तो फॉर आई इन आर देखो क्या कर रहा हूँ, आरई डॉट साब मतलब साब स्ट्रिंग, विकास क्या लिखे हैं, एक सेकंड सर, हाउ टू चेक एक्यूरेसी टू कंपेयर टू, एक्यूरेसी विकास क्या लिखे हैं हमको समझ में नहीं आया, आप लिखे हैं कि हाउ टू चेक एक्यूरेसी टू कंपेयर टू पैराग्राफ। एक्यूरेसी तो अभी चेक नहीं करेंगे, सेंटीमेंट एनालिसिस कर रहा हूँ ना विकास। यस सर, हमको सर यूज करना है एक मेरा एक प्रोजेक्ट में कि हमको दो स्ट्रिंग है, मान लीजिए कि लिखा हुआ आई एम विकास एंड माय नेम इज विकास, तो दोनों का जो एक्यूरेसी है वो फाइंड हमको करना है। तो वो किस बेसिस पे एनएलपी के यूज करके हम मतलब कैसे कर सकते हैं सर, और एक्यूरेसी जो बताया मतलब आप बोल रहे हैं कि दो टेक्स्ट है उसमें कितना सिमिलरिटी है ये चेक करना है ना। सिमिलरिटी तो सर ऐसे अगर हम अगर जावा का मदद से अगर देखते हैं या फिर पाइथन की मदद से देखते हैं तो सिमिलरिटी से कंपेयर टू से तो कर ही सकते हैं, उसमें बता देगा। बट सर हमको एनएलपी के यूज करके उसका ग्रामेटिकल चीज को देख के, जैसे कि आई एम विकास विकास है ना, माय नेम इज विकास, इसका दोनों का मतलब तो सर सेम हो रहा है, मतलब ग्रामेटिकल अगर देखा जाए तो सेम हो रहा है। तो उसमें बताएगा कि 90% आपका जो जो बोल रहे हैं आप वो सेम हो रहा है, तो वो हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं सर? तो इसको बोलते हैं कि डॉक्यूमेंट सिमिलैरिटी। तो इसलिए एक एल्गोरिदम प्रोवाइड किया है एनएलटीके में जिसको बोलते हैं कि टर्म फ्रीक्वेंसी, टीएफ। हाँ बाद में है शायद इसमें, मैं दिखा रहा हूँ हाँ स्टेप बाय स्टेप। ओके विकास, और आप भी स्टडी कर सकते हैं, मैं शायद यूज किए हैं इसमें, एक सेकंड देगा। आप जो बोल रहे हैं मैच सेम वर्ड की नहीं, वो कैसे करेंगे, ये एक सेकंड, ये टीएफ वेक्टराइजर एक मेथड है ऑलरेडी, मतलब फ्रीक्वेंसी चेक करता है कि सेम मतलब वर्ड, सेम टाइप वर्ड फ्रीक्वेंसी कितना है। तो ये एनएलटी के सॉरी स्केलर्न का देखो फीचर, एक फीचर एक्सट्रैक्शन डॉट टेक्स्ट, उसमें टर्म फ्रीक्वेंसी वेक्टराइजर एक बिल्ट इन फंक्शन है, ये भी यूज करके कर सकते हैं। और आप जो बोल रहे हैं कि सिमिलर है कि नहीं वो चेक करेंगे, देखो सेंटीमेंट में ये सिमिलरिटी मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं कि डॉक्यूमेंट सिमिलरिटी। तो जैसा आप बोल रहे हैं कि दो टेक्स्ट सिमिलर है कि नहीं वो कैसे चेक करेंगे, वो भी एनएलटीके में अवेलेबल है। तो एनएलटीके का और एक टॉपिक है जिसको बोलता है कि डॉक्यूमेंट सिमिलरिटी। तो डॉक्यूमेंट सिमिलरिटी भी चेक करने के लिए और भी बिल्ट इन फंक्शन अवेलेबल है। हाँ विकास, आप डॉक्यूमेंट सिमिलरिटी देके चेक कर, क्योंकि देखो मशीन लर्निंग में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स होता है। हाँ ओके, मैं एक ग्रुप में एक एग्जांपल भेज दूंगे, आगे पहले डिस्कस करने दीजिए। हाँ अच्छा, तो देखो एक फंक्शन लिखे हैं, तो उसमें क्या कर रहा हूँ कि जितना सारा इंडेक्स में अवेलेबल है उसमें देखो क्या देके रिप्लेस कर रहा हूँ, ब्लैंक। मतलब जहां जहां वो पर्टिकुलर पैटर्न अवेलेबल होगा वो इनपुट टेक्स्ट में ब्लैंक देके रिप्लेस कर रहा हूँ, और उसके बाद वो अपडेटेड टेक्स्ट को रिटर्न कर रहा हूँ। तो उसके बाद देखो एक ही फंक्शन लिख दिया, ये फंक्शन यूज करके कि डिफरेंट पैटर्न ऑफ वर्ड को रिमूव कर देना है, क्लियर करना है।
अननेसेसरी जितना सारा वर्ड्स है वो रखेंगे नहीं। तो इसलिए देखो रिमूव ट्विटर हैंडल्स @यूजर, जैसा @यूजर्स जितना सारा वर्ड वो सबको रिमूव करना। तो क्या किए, देखो np.vectorize, क्योंकि डेटा को वेक्टोराइजेशन करना चाहिए, तो np.vectorize रिमूव पैटर्न क्या करना हो, कहां से, देखो कॉम्बी ट्वीट, मतलब कॉम्बी मतलब जो अपेंड करने का बाद जो मिला, ये कॉम्बी मतलब ट्रेनिंग और टेस्ट को अपेंड करने का बाद जो मिला था हम लोगों को, दिस वन। तो ये कॉम्बी ट्वीट में देखो पहले ट्वीट में @यूजर ये सब था, तो कॉम्बी डेटा फ्रेम का जो ट्वीट कलम है, ट्वीट कलम में क्या क्या दिया, देखो @ ये रेगुलर एक्सप्रेशन है, @ देखिए स्टार्टिंग एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो सकता है, हाँ इसको बोलते हैं कि लिटरल। ये जावास्क्रिप्ट में भी अवेलेबल है, पाइथन में रेगुलर एक्सप्रेशन में अवेलेबल। तो पहले क्या किए, जितना सारा @ देखिए स्टार्टिंग वर्ड से वो सबको रिमूव कर रहा। Then if we want to remove punctuation, number, special character, remove, how to do that? Same thing, let's see. मतलब punctuation, numbers, देखो कॉम्बी ट्वीट डॉट str डॉट रिप्लेस, ये भी एक एक्सप्रेशन है कि जितना सारा स्पेशल कैरेक्टर होगा, नंबर्स होगा, वो सबको क्या करेगा, रिमूव कर देगा, जैसा ब्लैंक स्पेस यूज करेगा। तो मतलब नंबर्स, कैरेक्टर्स ये सबको रिमूव कर दिया। उसके बाद क्या कर रहा हूं, जितना सारा शॉर्ट वर्ड्स को, जैसा इज, एम, आर, ये सब सेंटीमेंट एनालिसिस करने के लिए जरूरी नहीं है, तो वो सबको रिमूव कैसे करेंगे, देखो कॉम्बी ट्वीट्स डॉट अप्लाई, आप लोगों को पता है लैम्डा एक्सप्रेशन। तो यहाँ जो फंक्शनलिटी में सिंगल लाइन में लिख दिया वो कैसे रीड करेंगे, देखो इफ, देखो फॉर लूप चला रहा हूँ, फॉर लूप कहाँ चला रहा हूँ, फॉर w in x डॉट स्प्लिट, x में मतलब टीटी ट्वीट में जितना सारा ट्वीट है उसको स्प्लिट कर रहा हूँ, तो लिस्ट ऑफ वर्ड्स मिलेगा, हर एक वर्ड w में स्टोर कर रहा हूँ। उसके बाद क्या कर रहा हूँ, इफ लेंथ ऑफ w ग्रेटर देन 3 होगा, if it is true then append this into list and join this and generate a string। तो जितना सारा वर्ड्स, तो ये ऐसा नहीं है कि ऐसा ही करना चाहिए, बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट यू कैन इम्प्लीमेंट एनी वन रूल ओवर हियर। तो जितना सारा वर्ड का लेंथ 3 से ज्यादा है वो सब वर्ड को रिमूव नहीं कर रहा हूँ, ज्वाइन कर रहा हूँ। ज्वाइन इज ए बिल्ट इन फंक्शन इन केस ऑफ स्ट्रिंग एंड टीडी ट्वीट में स्टोर कर रहा हूँ। तो देखो जो एक्चुअल ट्वीट था और टीडी ट्वीट में क्या स्टोर कर रहा हूँ, एक्चुअली ट्वीट को प्रोसेस करने के बाद देखो यहाँ @यूजर जितना सारा स्मॉल वर्ड था वो सब रिमूव कर दिया, रिमूव करके एक्चुअल जितना सारा वर्ड हम लोगों को इम्पोर्टेंट है सेंटीमेंट एनालिसिस करने के लिए, बस वो सबको यहाँ स्टोर किया, बाकी सबको रिमूव कर दिया। गॉट इट? और उसके बाद combi.head को प्रिंट किया। So in my documentation, I write in this way: once we have executed the above 3 steps, we can split every tweet into individual words or tokens, which is essential step in any NLP task. तो देखो जैसा remove small words, @sign, ये सब करने के बाद हम लोगों को क्या करना चाहिए, individual word generate करना। We can split every tweet into individual words or tokens, एक token, एक word generate, which is essential step in natural language processing. In the fourth tweet, there is a word love maybe. इसके बाद क्या करेंगे, टोकेनाइज करना है, बाद में देख रहा हूँ यहाँ टोकेनाइज भी किए हैं। टोकेनाइज क्यों कर रहे हैं, देखो टोकेन, नाउ वी विल टोकेनाइज ऑल द क्लीन ट्वीट्स जो टीडी ट्वीट में स्टोर्ड है।
TD tweet में सब कुछ क्लीन कर दिया, स्पेशल कैरेक्टर, नंबर, मतलब इसमें स्पेशल कैरेक्टर और एक है हैश साइन भी है, तो बाद में देखते हैं कि हैश को भी रिमूव कर देना चाहिए। अच्छा, उसके बाद क्या कर रहा हूँ, टोकेनाइज कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि एक एक वर्ड, लिस्ट ऑफ वर्ड्स बनाना है। Tokenize all the clean tweets in our data set. Tokens are individual terms or words, and tokenization is a process of splitting a string of text into tokens. तो कैसे करेंगे? Obviously, I think all of you know that if you want to generate a list of words, we use split function, lambda x colon x dot split. Apply this in TD tweet column and it will generate a tokenized tweet. Let's see, because this is our TD tweet. Okay, now we tokenize this. After tokenize, if we take tokenized tweet, it will return. पहले कैसे था? पहले ये डेटा फ्रेम था, उसके बाद क्या आया? देखो सीरीज आया, मतलब जितना सारा ट्वीट्स है, लिस्ट ऑफ ट्वीट्स क्रिएट किया। उसके बाद क्या करेंगे? दिस इज आवर टोकेनाइज्ड ट्वीट्स। हर एक ट्वीट्स को लिस्ट ऑफ ट्वीट्स मिल गया, सीरीज ऑफ ट्वीट्स। अच्छा, नाउ what we have to do in case of sentiment analysis, in the fourth tweet there is a word, maybe love. We might also have terms like loves, loving, lovable, etc. in the rest of the data. These terms are often used in the same context. If we can reduce them to their root word, which is love, then we can reduce the total number of unique words in our data without losing a significant amount of information. तो मतलब सेंटिमेंट एनालिसिस कर रहा हूं तो NLTK के भी तो किसी ने डेवलप किया है, तो वो लोग क्या किया? एक्चुअली फ्रीक्वेंसी, वर्ड फ्रीक्वेंसी चेक किया। जैसा विकास ने पूछा, सर सेम है कि नहीं, चेक कैसे करेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड फ्रीक्वेंसी सिमिलर है कि नहीं, वो चेक करके सिमिलरिटी चेक कर सकते हैं। ऐसा पॉजिटिविटी, न्यूट्रल, नेगेटिविटी कैसे चेक करेंगे? फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड्स। तो ऐसा देखो, जब हम लोग कुछ फीडबैक और ट्वीट करते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स यूज करते हैं, मे बी लव्स, लविंग, लवेबल। तो ये सब वर्ड को जो रूट वर्ड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखो एक वर्ड देखे वो परसेंटेज चेक कर सकते हैं कि जैसा 4-5 वर्ड्स का जरूरी नहीं है। यूनिक वर्ड्स इन आवर डेटा विदाउट लॉसिंग द सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये तो बोले थे, डिस्कस किए हैं। रिमूव पैटर्न, रिमूविंग पंक्चुएशन, रिमूविंग शॉर्ट वर्ड्स, टोकेनाइज किए हैं। आफ्टर टोकेनाइजेशन this is called, after tokenization what we do? We use a stemming process. Stemming process मतलब जैसा lovable, loving, देखो ing, ly, es, es, ये सब जो वर्ड ऐड हुआ है मेन रूट वर्ड के साथ, वो सब को रिमूव करना चाहिए। तो इसको बोलते हैं कि स्टेमिंग। स्टेमिंग इज ए रूल बेस्ड प्रोसेस ऑफ स्ट्रिपिंग द सफिक्सेस from a word. For example, there's a player, play, player, played, plays, playing are the different variations of the word play. सबको क्या करेंगे? प्ले वर्ड में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो NLTK में भी एक बिल्ट इन स्टेमर है। व्हाट इज दिस? From NLTK.stem.potter import star, there is a built-in class potter stemmer. Using this potter stemmer class object, we execute the stemming process. How? Because this is a stemmer. Now,
tokenized tweet equal to tokenized tweet dot apply lambda expression. Stemmer object, there is a built-in function stem I for I in x. For I in x मतलब जितना सारा वर्ड है वो सब में लिस्ट ऑफ वर्ड्स मिल गए, हर एक वर्ड्स में चेक कर रहा हूं, और जब ऐसा कोई वर्ड आएगा कि ING ES ऐसा सब जो एडेड है वो सबको रिमूव कर देंगे। उसके बाद टोकेनाइज्ड डॉट ट्वीट हेड को प्रिंट किया। तो एक्चुअली स्टेम एक फंक्शन है, स्टेम फंक्शन क्या करेगा, रूट वर्ड में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ प्रोग्राम में भी मैं किया था। Let's see, in the after tokenized to after stemming process we print this. When I print this, let's see, these are the words. if you check कि एस ES ये सब है कि नहीं, देखेगा कि ये लिस्ट ऑफ वर्ड्स में एस ES ये सब नहीं है, वो रिमूव कर देगा। दैट इज कॉल्ड स्टेमिंग प्रोसेस, मतलब रूट वर्ड में कन्वर्ट। आफ्टर स्टेमिंग व्हाट वी हैव टू डू, नाउ लेट्स स्टिच दिस टोकन्स बैक टुगेदर। मतलब जैसा लिस्ट ऑफ वर्ड्स क्रिएट किया था उसके बाद क्या कर रहा हूँ, एक साथ कर रहा हूँ। सो अगेन वी आइटरेट द फॉर लूप। टोकेनाइज ट्वीट जो है उसमें फॉर लूप चला रहा हूँ फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ द टोकेनाइज ट्वीट। जितना सारा वर्ड्स है सबके लिए एक एक लिस्ट में जितना सारा वर्ड्स है उसमें लूप आइटरेट करेगा। टोकेनाइज अंडरस्कोर ट्वीट आई इक्वल टू, देखो डॉट ज्वाइन टोकेनाइज ट्वीट, मतलब फिर से ज्वाइन कर रहा हूँ। जैसा पहले लिस्ट ऑफ वर्ड था कॉमा सेपरेटेड, तो अभी ज्वाइन करने का बाद क्या कैसे दिखाएगा, मतलब ऐड कर देगा, ऐसा वर्ड जैसा दिखाएगा। मीन्स टोकेनाइज ट्वीट अभी कैसे दिखा रहा है, देखो आफ्टर स्टेमिंग व्हेन वी कॉल दिस ज्वाइन देन टोकेनाइज ट्वीट इनटू कॉम्बी टीडी ट्वीट। तो कॉम्बी टीडी ट्वीट को चेक करो, ये क्लियर डेटा है, कॉम्बी डेटा फ्रेम क्लियर हो। लेकिन हैश साइन है, हैश साइन को बाद में रिमूव करना चाहिए। तो हैश साइन रिमूव करने के लिए स्पेशल कैरेक्टर यूज करके रिमूव आप लोग कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। आफ्टर दैट हम लोग क्या चेक कर रहा हूँ, ऐसा देखो स्मॉल वर्ड्स वर्ब सफिक्स से सब रिमूव करने का बाद स्टोरी जनरेशन एंड विजुअलाइजेशन फॉर्म ट्वीट्स विजुअलाइज करेंगे, क्योंकि डेटा विजुअलाइज करके भी उसका सेंटीमेंट हम लोग चेक कर सकते हैं। In this section, we will explore the clean tweets text. Exploring and visualizing data, no matter whether it's text or any other data, is an essential step in gaining insight. Do not limit yourself to only those methods told in this tutorial. Feel free to explore the data as much as possible. तो मतलब जैसा हम लोग जो डिस्कस कर रहा हूँ, don't think that कि यही प्रोसेस है। There are huge number of way to organize the data and process the data and clean the data. तो देखो यहाँ क्लीन करने के बाद हम लोगों को क्या चेक करना चाहिए कि what are the most common words in the entire data set. यहाँ तो क्लीन करने के बाद बहुत सारा डेटा दिखा रहा है। तो ये कॉम्बी ट्वीट जो मिला क्लीन करने का बाद थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स, लेकिन वो थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स में कौन सा वर्ड का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वो कैसे चेक करेंगे। मे बी स्लैग लैंग्वेज भी तो यूज होता है कभी कभी, तो उसका भी फ्रीक्वेंसी चेक करना, विजुअलाइज करना, नॉट न्यूमेरिकल डेटा। न्यूमेरिकल डेटा होगा तो बस सर्च कर लेंगे, वो मिल जाएगा कि कितना नंबर ऑफ स्लैग लैंग्वेज है, वो तो मिल सकता है, नो प्रॉब्लम। But here we want to by visualizing the data, we want to check what are the most common words in the entire data set.
what are the most common words in the data set for negative and positive tweets respectively? ये visualize करके check करना. How many hashtags are there in a tweet? कितना hashtag available? Which trends are associated with my data set? जो data set है इसमें क्या trend क्या है? ये political tweets, educational tweets, कि and different types of tweets are there. तो वो trend कैसे check करें? Which trends are associated with either of the sentiments? Are they compatible with sentiments? तो ये सब क्वेश्चन देखो, प्रोसेस कर दिया, रिमूव कर दिया, बहुत सारा फंक्शंस है. आप लोग ऐसा मैनुअली स्ट्रिंग हैंडलिंग जैसा हैंडल करके भी रिमूव कर सकते हैं, नो इशू, विदाउट यूजिंग अ रेगुलर एक्सप्रेशन फंक्शन. क्लीन करने के बाद ये सब चेक करना. अंडरस्टैंडिंग द कॉमन वर्ड्स यूज इन द ट्वीट्स, कैसे चेक करेंगे? यूजिंग वर्ड क्लाउड. Now I want to see how well the given sentiments are distributed across the trend data set. One way to accomplish this task is by understanding the common words by plotting the word clouds. जितना सारा word उसको visualize कर सकता है. तो ये visualization process को क्या बोलेंगे? Word cloud. A word cloud is a visualization wherein the most frequent words appear in the large size. जो वर्ड का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वो लार्ज साइज जैसा दिखा है. जैसा एक आउटपुट आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं. जैसा मैं वर्ड क्लाउड जो जनरेट किए हैं, देखो ये एक एक्चुअली विजुअलाइजेशन फॉर्म है. जैसा LOV देखो, ये बहुत बिग साइज दिखा रहा है, मतलब ये टाइप, ये वर्ड का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है. देखो थोड़ा सा स्टडी करने से हम लोगों को, जैसा ट्रम्प मतलब पॉलिटिकल लीडर रिलेटेड भी कुछ है, नेम है. हाँ, तो ऐसा विजुअलाइज करके हम लोग चेक कर सकते हैं कौन सा टाइप वर्ड का, मतलब जितना सारा ट्वीट है वो रिलेटेड विथ विच टॉपिक्स, एक आइडिया आ सकता है. तो इसको बोलते हैं कि वर्ड क्लाउड. हाउ टू डू दैट? लेट्स सी. यहाँ प्रोग्राम में डिस्कस. लेट्स सी. आफ्टर क्लीनिंग द डेटा, देखो ऑल वर्ड्स इन द एक्चुअली कॉम्बिटेटिव ट्वीट्स में जितना सारा वर्ड्स होगा, तो फॉर लूप चलाना हो हर एक कॉम्बिटेटिव ट्वीट्स में. तो एक एक टेक्स्ट आया तो उसको ज्वाइन करके एक स्ट्रिंग बनाया और एक एक ऑल वर्ड्स में स्टोर किया. लिस्ट ऑफ ऑल द वर्ड्स इन द TD tweets. And word cloud is also defined as a class in this module, word cloud. देखो word cloud width and height मतलब जो visualization graph है उसका width and height, तो 800 by 500 दे दी. तो ये चेंज करके बिग साइज भी करना पड़ेगा, नहीं तो ठीक से आइडिया नहीं आएगा. रैंडम स्टेट इक्वल टू 21, मतलब जो वर्ड्स को रैंडमली सिलेक्ट करके वो विजुअलाइज करेगा. तो ये भी एक स्टेट है, मतलब फ्लैग. जैसा रैंडम स्टेट आप लोग 0 यूज किए थे, 42 यूज किए, वो भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. कोई भी एक रैंडम स्टेटस कोड. फ्रंट साइज, मैक्सिमम फ्रंट साइज कितना होगा? 110. मतलब जो वर्ड का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसका मैक्सिमम साइज क्या होगा? 110. डॉट जेनरेट यूजिंग ऑल वर्ड्स, मतलब TD ट्वीट्स में जितना सारा वर्ड्स है वो सब लेके क्या कर रहा हूँ? वर्ड क्लाउड क्रिएट कर रहा हूँ. उसके बाद देखो plt.figure, फिगर साइज में भी एनीथिंग. plt.imshow, ये इमेज शो एक बिल्ट इन फंक्शन है मैटप्लॉटलिब में, ये वर्ड क्लाउड को प्रिंट कर रहा हूँ. और इंटरपोलेशन, देयर आर डिफरेंट इंटरपोलेशन प्रोसेस, बाइलिनियर, नॉन लिनियर, एनीथिंग. तो I use a bilinear process. plt.axis of, there is no x-axis and y-axis, that's why I set plt.axis of and plt.show. At that time it will display the word cloud in this way. Got it?
and it will visualize the frequency of words. तो यहाँ से भी हम लोगों को कुछ आइडिया मिलेगा, and we can see most of the words are positive or neutral or not. With happy, देखो happy एक word में भी ऐसा है, happy and love being the most frequent ones. ऐसा ये भी इमेज को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ से क्या बोल रहा हूँ कि जिस जो टाइप का वर्ड का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा वो बिग साइज करके दिखाएगा. So love, happy and love being the most frequent ones, it does not give us any idea about the word associated with the racist, sexiest tweets. ऐसा स्लैंग लैंग्वेज भी हो सकता है, लेकिन यहाँ से क्या पता चला कि हाँ मोस्ट ऑफ द ट्वीट्स आर पॉजिटिव. Hence we will plot separate word clouds for both of the classes. तो ऐसा भी चेक कर सकते हैं. Words in non-racist or sexiest tweets. तो ऐसा भी चेक करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? सेम थिंग. देखो नॉर्मल वर्ड्स ज्वाइन एक्स कॉम टीडी ट्वीट कॉम बी लेवल इक्वल टू 0 क्योंकि वो आउटपुट था. उसके बाद देखो वर्ड क्लाउड क्रिएट किए हैं 800 by 500 random state 21 maximum font size this normal words this. उसके बाद इमेज सेम प्रोसेस. Then we can see the most of the words are positive or neutral with happy, smile, love being the most मतलब जितना सारा 0 leveling frequent ones. Hence most of the frequent words are compatible with the sentiment which is non. Similarly, we will other sentiment expect to see negative racist terms. Negative tweets भी check कर. लेवल रिप्रेजेंट करता है क्योंकि आउटपुट 0 और 1 था. जितना लेवल ट्वीट का लेवल 1 था तो ये डेटा फ्रेम जब चेक करेंगे देखो यहाँ when level equal to 0 when level equal to 1 ऐसा करके चेक करा. ये लेवल देखो कोई ट्वीट का लेवल 0 है, कुछ ट्वीट्स है जिसमें लेवल इक्वल टू 1 है. लेवलिंग की तो बेस्ड ऑन द लेवल हर एक ट्वीट का बेस्ड ऑन द लेवल क्या कर रहा हूँ चेक कर रहा हूँ वो फ्रीक्वेंसी यूजिंग वर्ड क्लाउड. तो वो चेक करेंगे तो ऐसा विजुअलाइज कर सकते हैं. देखो ये ट्रम्प ये सब आ गया मतलब पॉलिटिकल इशू है कुछ रिलेटेड टू इट. We can see most of the words have negative connotations. So it seems we have a pretty good text data to work on. Next, we will the hashtag trends in our Twitter data. Understanding the impact of hashtag on tweet sentiment. Hashtag in Twitter are synonymous with the ongoing trends on Twitter at any particular point in time. We should try to check whether these hashtags add any value to our sentiment analysis task. And they help in distinguishing the tweets into different sentiments. The hashtag analysis भी करना चाहिए. For instance, given below a tweet from our dataset, what has today's attitude to women got in common with that of Norman Bates? Has psycho, has feminism, has hollowback. मतलब important से कितना है. The tweet seems sexiest in nature and hashtags in the tweet convey the same feeling. So we will store all the trend terms in 2 separate lists. One of the non-racist tweets and another is racist tweets. How to do this? That's why कैसे करेंगे मतलब हैशटैग कलेक्ट करेंगे जितना सारा हैशटैग है वो स्टोर करेंगे. तो हैशटैग एक्सट्रैक्ट करने के लिए देखो और एक फंक्शन लिखे एक तो वर्ड क्लाउड लेवलिंग वाइज देखो हैशटैग जो ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है ये बिल्ट इन फंक्शन नहीं है. एक लिस्ट बनाया एम्प्टी लिस्ट फॉर आई इन एक्स मतलब एक्स में क्या पास करेंगे एक्चुअली जितना सारा ट्वीट्स है वो सब पास करेंगे.
तो हर एक रो के लिए लूप इटरेट कर रहा हूँ, फाइंड ऑल, देखो हैश देन वर्ड्स होगा तो हैशटैग हैश, उसके बाद कुछ वर्ड्स है वो सबको क्या कर रहा हूँ, सब अपेंड कर रहा हूँ वो सब वर्ड्स को हैशटैग्स लिस्ट। उसके बाद देखो HT रेगुलर एक्सट्रैक्टिंग द हैशटैग फ्रॉम नॉन रेसिस्ट और सेक्सियस्ट लिस्ट, नॉन रेसिस्ट जितना है तो हैशटैग एक्सट्रैक्ट, देखो कॉम्बी कौन सा कितना, जिसका लेवल इक्वल टू 0 वो HT रेगुलर में स्टोर किया। तो HT रेगुलर चेक करेंगे, हैशटैग देखिए क्या क्या वर्ड्स अवेलेबल है, जितना सारा ट्वीट्स का लेवल 0 है, ये लिस्ट ऑफ वर्ड्स मिल गया। इन द सेम वे जितना सारा लेवल 1 है वो सब में जितना सारा हैशटैग रिलेटेड वर्ड्स है वो सब को हैशटैग नेगेटिव में स्टोर किया, HT नेगेटिव। तो ये सब वर्ड मिला। तो डिफरेंट लैंग्वेज का वर्ड भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि हर सब कुछ इंग्लिश में मिलेगा। उसके बाद क्या कर रहा हूं, नाउ अननेस्टिंग द लिस्ट। अननेस्टिंग द लिस्ट मतलब लेट्स सी, अननेस्टिंग करने का बाद एक्चुअली ये क्या करेगा, रिटर्न द लिस्ट। फिर से एक बार रन करके करके चेक करना। मतलब ट्वीट्स में पॉजिटिविटी कितना है, नेगेटिविटी कितना है, एक एक करके चेक करना। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इसमें ह्यूज डेटा सेट डेटा है। रन होने दो, मैं बोल रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ। तो उसके बाद अननेस्टिंग करना लिस्ट ऑफ वर्ड्स को। नाउ दैट वी हैव प्रिपेयर्ड our list of hashtags for both the sentiments, we can plot the top n hashtags. So first let's check the hashtag in the non-racist कितना है, non-racist में कितना है वो सब चेक किए। तो NLTK डॉट मतलब जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो NLTK में देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट बोल के एक फंक्शन है। तो HT रेगुलर में एक्चुअली नॉन रेसिस्ट वर्ड्स को स्टोर किए। तो जितना सारा नॉन रेसिस्ट वर्ड्स है वो देखे क्या कर रहा हूँ, एक्चुअली वी जनरेट अ डेटा फ्रेम। देखो हैशटैग इज द की, उसमें क्या कर रहा हूँ, देखो लिस्ट a.keys। तो मतलब ये जो NLT की जो फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली फ्रीक्वेंसी चेक करेगा, चेक करके क्या करेगा, वो कीज और काउंट, मतलब काउंट कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि अलग अलग वर्ड, जैसा प्रीवियस प्रोग्राम में क्या किया था, लिस्ट ऑफ वर्ड जनरेट किया तो उसका फ्रीक्वेंसी चेक किया था। यहाँ क्या कर रहा हूँ, जो एग्जिस्टिंग वर्ड है हैशटैग में मोस्ट टॉप इन हैशटैग रिलेटेड हैशटैग वर्ड्स। तो इसमें देखो लिस्ट a.keys, तो वर्ड और उसका काउंट मतलब कितना बार ऑकरेंस हुआ है वो चेक कर रहा हूँ। सिलेक्टिंग टॉप 10 मोस्ट फ्रीक्वेंट हैशटैग्स, मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स कितना कितना। तो देखो इसलिए हम लोग को क्या जरूरी नहीं है
कि मैन्युअली वर्ड लिस्ट क्रिएट करने का कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद क्या किया, डेटा फ्रेम डॉट एन लार्जेस्ट कॉलम काउंट n इक्वल टू 10 plt डॉट फिगर साइज, मतलब क्या कर रहा हूं, हर एक एग्जिस्टिंग वर्ड्स, जो एग्जिस्टिंग वर्ड और कितना बार ऑकरेंस है हैशटैग में, हैशटैग वर्ड्स जो है, तो वो लेके क्या कर रहा हूँ, देखो फिगर साइज बार प्लॉट क्रिएट कर रहा हूँ। डेटा डी मतलब डेटा में क्या है कि एक्चुअली वो वर्ड और कितना बार ऑकरेंस है, x इक्वल टू हैशटैग लिस्ट ऑफ कीज, y इक्वल टू काउंट, x डॉट सेट y लेवल इक्वल टू काउंट plt डॉट शो। तब ऐसा चेक करेंगे तो यहाँ से क्या पता चला कि कन वर्ड का फ्रीक्वेंसी कितना है नॉन रेसिस्ट में और रेसिस्ट ट्वीट्स में, क्योंकि ट्वीट्स में तो वो लेवलिंग था, तो नॉन रेसिस्ट में कन वर्ड्स का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो यहाँ से भी एक सेंटीमेंट हम लोगों को पता चल जाएगा। All these hashtags are positive, it makes sense. I am expecting negative term in the plot of the second list. Let's check the most frequent hashtags appearing in the racist and sexist. जो racist जो है तो उसमें भी सेम थिंग, जिसका लेवल 1 था, NLTK dot frequent dist HT नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव जो नेगेटिव मतलब जिसका लेवल 1 था, PD dot data frame hashtag list सेम थिंग। तो यहाँ देखो नेगेटिव वर्ड्स का भी हम लोग चेक किए कि ट्रम्प रिलेटेड वर्ड्स का फ्रीक्वेंसी इतना बार है, इतना बार है। तो यहाँ से देखो जो जितना सारा ट्वीट्स है, तो ट्वीट्स में जो ज्यादा अवेलेबल वर्ड्स क्या क्या है, यहाँ से हम लोगों को पता चल जाए। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों को डिक्शनरी क्रिएट करना, क्यों, क्योंकि NLT के वो फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड्स चेक करते। As expected, most of the terms are negative with a few neutral terms as well. So it is not a bad idea to keep these hashtags in our data as they contain useful information. Next, we will try to extract feature from the tokenized tweets. Extracting feature from clean tweets. To analyze preprocessed data, it needs to be converted into features. Depending upon the usage of text features can be constructed using assorted techniques. There are different techniques available. अभी जो विकास पूछा था ये TF-LDF सब एल्गोरिदम है, बैग ऑफ वर्ड्स एल्गोरिदम, TF-LDF एल्गोरिदम, word embeddings. In this article, we will be covering only bag of words and TF-LDF. What is bag of words feature? These are the main important. Algorithm. Bag of words is a method to represent text into numerical feature. Text को numerical feature देके represent करें. Consider a corpus. Corpus मतलब a collection of text called C of D documents. दो documents में भी जो document similarity checking और जो विकास पूछा था कि दो word similar है कि नहीं, check कैसे करेंगे. Consider a corpus, a collection of text called C of D documents, D1, D2 in this way, and n unique token extracted out of the corpus C. The n token मतलब एक word एक token will form a list, and the size of the bag of word matrix M will be given D into n matrix. Each row in the matrix M contains the frequency of tokens in the document DI. Let us understand the using of simple example. Suppose we have only two documents, like D1. He is a lazy boy. He is also lazy. Or एक document है, Smith is a lazy person. The list created would consist of all the unique tokens in the corpus C, like he, she, lazy, boy, Smith, person. Here, देखो D equal to 2, n equal to 6. How? तो एक्चुअली एक मैट्रिक्स क्रिएट करता बैग ऑफ वर्ड्स. कैसा? द मैट्रिक्स एम ऑफ साइज 2 into 6 will be represented as देखो जितना सारा बैग जितना सारा वर्ड है दो डॉक्यूमेंट में,
ही देखो फर्स्ट जो D1 कैसे मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करते हैं, जो D1 में देखो ही अवेलेबल है, सी भी अवेलेबल है 1 टाइम, लेजी वर्ड कितना बार है देखो 2 बार 2 टाइम्स, बॉय वर्ड कितना बार है 1 टाइम्स, स्मिथ 0 टाइम्स, पर्सन 0 टाइम्स। और D2 में देखो ही वर्ड अवेलेबल नहीं है D2 में, सी वर्ड नॉट अवेलेबल, लेजी वर्ड 1 टाइम अवेलेबल, boy is not available, Smith 1 time available, and person is 1 time available. D equal to 2 मतलब देखो 1 2, n equal to number of words 1 2 3 4 5 6, लेकिन इसमें देखो is a ये सब वर्ड तो जरूरी नहीं है, ये सब वर्ड को हम लोग रिमूव कर सकते हैं, just now we discuss about it. Now the columns in the above matrix can be used as features to build a classification model. तो ये यूज करके क्लासिफिकेशन मॉडल बना सकते। बैग ऑफ वर्ड्स फीचर कैन बी इजीली क्रिएटेड यूजिंग sklearn's काउंट वेक्टर फंक्शन। sklearn मॉड्यूल में काउंट वेक्टर बोल के एक फंक्शन है, वो यूज करके कर सकते हैं। वी विल सेट द पैरामीटर मैक्सिमम फीचर्स इक्वल टू 1000 टू सिलेक्ट ओनली टॉप 1000 टर्म्स ऑर्डर्ड बाय द टर्म फ्रीक्वेंसी अक्रॉस द कॉर्पस। तो मतलब जो फीडबैक होगा, जो पैराग्राफ होगा, तो ऐसा टर्म फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फीचर्स मतलब 1000 टाइप्स ऑफ वर्ड्स ये सेट कर सकते हैं। तो जैसा एक कोडिंग एग्जांपल देखो, फ्रॉम sklearn फीचर एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट, इंपोर्ट काउंट वेक्टराइजर, देन काउंट वेक्टर देखो मैक्सिमम df 0.90, minimum df, maximum features, you can set any value, no problem. Stop words English, then bow vectorizer, this one bow vectorizer, the object of count vectorizer, dot fit underscore transform, किसको ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ देखो, कॉम्बी ट्वीट में जितना सारा अवेलेबल है, तो बैग ऑफ वर्ड्स क्रिएट करके उसका सिमिलरिटी भी चेक कर सकते, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी ये भी चेक कर सकते हैं। और एक क्या है कि TF LDF फीचर, this is another method which is based on the frequency method, but it is different to the bag of word approach in the sense that it takes into account not just the occurrence of a word in a single document, but in the entire corpus, पूरा document। TF LDF works by penalizing the common words by assigning them lower weights। क्या बोल रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टर्म फ्रीक्वेंसी और LDF works by penalizing the common words by assigning them lower weights while giving importance to words which are rare in the entire corpus but appear in good numbers in few documents। थोड़ा सा different है। Let's see, have a look at the important terms related to TF-LDF। देखो, what is TF? Number of times term T appear, कोई भी एक term word in a document divided by number of terms in the document, total document। What is LDF? देखो, log of n by n, where n is the number of documents and n is the number of documents a term T has appeared, and TF-LDF कैसे available होगा? By multiplying this। Actually ये तो frequency check कर रहा है कोई particular words का, and it is also defined like the same thing, sklearn feature extraction text, vectorize this, after vectorization देखो TF IDF vectorizer dot fit transform combinated tweets। तो मतलब ये यूज करके भी फीचर मैट्रिक्स हम लोग जनरेट कर सकते हैं हर एक वर्ड्स का। नाउ मॉडल बिल्डिंग फॉर सेंटिमेंट एनालिसिस, वी आर नाउ डन with all the pre-modeling stages required to get the data in the proper form and shape. Now we will be building a predictive model on the data set using two feature set, bag of words
and TF-IDF or LDF. We will use a logistic regression classification. I think all of you know that. Logistic regression to build the models. Same thing. Let's see. If you check the coding, the logistic regression, import training test dot split F1 स्कोर चेक करने के लिए, उसके बाद देखो ट्रेनिंग डेटा टेस्ट डेटा जनरेट किए हैं, उसके बाद स्प्लिट किया, अभी आप लोगों को पता है सब कुछ. ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट, create an object of the logistic regression, feed the data xtrain and ytrain, then predict the result for test data, predict probability, predict this. तो इसमें क्या चेक कर रहा हूं, देखो जितना सारा पॉइंट जो फ्रीक्वेंसी 0.3 से ज्यादा है तो उसको स्टोर कर रहा हूं. तो प्रेडिक्ट इन में स्टोर किया, प्रेडिक्शन अंडरस्कोर इंट एज टाइप इंटीजर, देन F1 स्कोर चेक किए, F1 स्कोर को प्रिंट करेंगे तो क्या देख रहा हूं 0.53. We trained logistic regression model on the bag of word feature and gave us F1 score 50.53 for the validation set. Now we will use this model to predict for the test data. Test data के लिए same thing. Predict probability test जितना सारा greater than equal to 0.3 testing validation होगा and submit it into the CSV file. CSV file में save भी कर रहा हूँ. The public leaderboard F1 score is 0.567. Now we will again train logistic regression model, but this time on the TF-IDF feature. How it perform? देखो ये bag of words. लेकिन TF-IDF देखे करेंगे same thing. Test data, training data, xtrain, training data feed किए हैं. Logistic regression में भी, लेकिन इसमें क्या कर रहा हूँ, वो जो TF-IDF यूज करके जो कॉर्पस जनरेट किए थे, मैट्रिक्स जनरेट किए थे, तो वो सेम कोडिंग प्रोबेबिलिटी चेक कर रहा हूँ. तो यहाँ 5-4 दे रहा है. तो वैलिडेशन देखो इसमें, तो ये जो TF-IDF यूज करके जो मॉडल क्रिएट कर रहा हूँ, इसमें स्कोर परसेंटेज एक्यूरेसी स्कोर ज्यादा आ रहा है. तो मतलब इसमें प्रेडिक्शन अच्छा होगा TF-IDF देके करेंगे तो. जस्ट तो कोई भी मॉडल लेके हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन सेंटिमेंट एनालिसिस देखो, ये प्रेडिक्शन तो प्रेडिक्शन करने के बाद देखो सेव किए, तो इसको ओपन करके देखेंगे तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली वर्ड्स ये देखो हर एक ट्वीट को वो क्लासिफाई कर दिया कि कौन जीरो टाइप का है, कौन सा ट्वीट. तो ऐसा मतलब क्या है, जो नया ट्वीट आएगा बेस्ड ऑन दैट ट्वीट, तो वो एनालाइज करेंगे वो रेसिस्ट ट्वीट कि नॉन रेसिस्ट ट्वीट. तो ऐसा डिफरेंट केस में हम लोग यूज कर सकते हैं. एक्चुअली तो हम लोग सेंटिमेंट एनालिसिस कर रहा हूँ, तो मतलब सेंटिमेंट कौन सा टाइप का है तो लेवलिंग करना चाहिए. तो एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ, ये सब डेटा देके हम लोग मॉडल क्रिएट किया. मॉडल क्रिएट करने के बाद वो मॉडल यूज करके अभी जो नया ट्वीट्स आप लोग देगा तो वो ट्वीट्स को एनालाइज करें कि ये रेसिस्ट ट्वीट कि नॉन रेसिस्ट ट्वीट. ऐसा देखो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ये पॉलिटिकल ट्वीट्स होगा कि नॉन पॉलिटिकल ट्वीट्स होगा, वो भी चेक कर सकते हैं. सो दिस इज द वे. एंड रिमेंबर वन थिंग, natural language processing provides us different mechanism. सबको समझ में आया स्टूडेंट्स?
All of you got it? थोड़ा स्टडी करना है. Anyone, any doubts, any question? और विकास जो बोला था मैं एक प्रोग्राम सेंड करेंगे, इसको बोलता कि डॉक्यूमेंट सिमिलरिटीज, ये भी चेक कर सकता सेम है कि नहीं, मतलब बैग ऑफ वर्ड्स बना के वो चेक कर सकता उसका फ्रीक्वेंसी. देखते हैं है कि नहीं वो प्रोग्राम. अच्छा एक सेंड कर देंगे एग्जांपल, चेक करके देखें. तो वो बहुत सारा है, जैसा कोसाइन रूल, ये नेट से भी आप लोग स्टडी कर सकते हैं थोड़ा सा. एक सेकंड. अच्छा जो इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, हेलो ऑल ऑफ यू हियर मी क्लियरली, एक बार रिप्लाई दो. ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू. तो एक बार सुनो ध्यान देके कि आप लोगों का जो ट्रेनिंग प्रोसेस है इसमें क्या करना चाहिए. अभी तो आज मंडे है और 4 डेज बाकी है. ये लास्ट 4 डेज you have to create any one project, in any topic, and create a project report also. So I suggest, and you have to submit this project report. You have to submit this project report. Let I give you the link where you submit the project report. But at first, you have to choose any one project topic, any one. You can go through the Kaggle website also. You can go through different website like Towards Data Science, Super Data Science, or if you think that based on my interest, I want to create your project. Obviously, you can create this. After creating the project, you have to create a project report. I share our Ardent's project report format, that is IEEE project report format, and at the on Friday you have to submit this project report format. All of you prepare for that. If anyone have any problem, then send me the message, I will help you. कि ऐसा नहीं है अभी क्लास नहीं है तो मैसेज नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है. मैसेज कीजिएगा, जो हेल्प करना है मैं हेल्प कर दूंगा. तो कल हम वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे. बट टुडे ऑल ऑफ यू चूज एनी वन प्रोजेक्ट टॉपिक. और जो डॉक्यूमेंट सिमिलरिटी बोल रहा हूँ, जो जैसा विकास क्वेश्चन किया था, तो ये चेक करने के लिए बहुत सारा रूल्स है, सिर्फ एनएलटी के ही नहीं है. कोसाइन रूल है, डीएफ आईडीएफ रूल्स है. बोलेगा
एक बार नेट में सर्च करके देखिएगा, मैं कुछ सेंड कर दूंगा ग्रुप में। सर कुछ प्रोग्राम रन करने में प्रॉब्लम हो रहा तो उसको कैसे क्या प्रोग्राम रन करने में, जो प्रोग्राम रन करने में प्रॉब्लम होगा हमको मैसेज, वो जो एरर मैसेज है ना, तो एरर मैसेज हमको सेंड कीजिएगा, मैं ये बोल दूंगा। ओके, इफ एनीवन व्हेन यू क्रिएट योर प्रोजेक्ट कि कुछ मैसेज है रन करने में, एरर मैसेज है, हमको वो एरर मैसेज सेंड कीजिएगा। हाँ, तो एरर मैसेज देख के हम बता सकते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करेगा। तो यहाँ एक जेनसिम है, जेनसिम फंक्शन है। एक बार विकास को बोल रहा हूँ, एक बार स्टडी करके देखिएगा। जेनसिम फंक्शन है, कोसाइन फंक्शन है, डीएफ है, वर्ड क्लाउड है, वो सब देखे भी चाहिए, बैग ऑफ वर्ड्स क्रिएट किए। ये DF इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी एंड टर्म फ्रीक्वेंसी, ये यूज करके कर सकते। और एक है कि कोसाइन, ये सब यूज करके सिमिलरिटी, डॉक्यूमेंट सिमिलरिटी क्वेरी कितना सिमिलर है वो चेक करके रिटर्न करें। I share this link. I suggest all of you just read this. और मैं सबको सजेस्ट करूंगा क्योंकि इसके बाद तो हम लोग प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो मशीन लर्निंग आप लोग ट्रेनिंग किए हैं, डोंट थिंक दैट कि दिस इज ओनली मशीन लर्निंग, because remember one thing students, in case of real life there are huge number of projects related with different domain, not only कि Twitter tweets, not only the salary prediction, not only the sale data prediction, not like that. That's why I suggest all of you go through different types of programs in different websites for case study. Case study बहुत important है। अच्छा, मैं तो प्रोग्राम सेंड कर रहा हूँ। तो और एनीवन, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट्स? लेकिन आप लोग थोड़ा आगे आप लोगों को छोड़ रहा हूँ, लेकिन आप लोग वो प्रोजेक्ट टॉपिक चूज करके रखिएगा एंड विद इन फ्राइडे वी हैव टू कंप्लीट दिस।